بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 2 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیسک لینگویج کا انٹروڈکشن پڑھا، یہ ہوتی کیا ہے، کس نے بنائی، کس جگہ پہ کب بنی، جو ایم سی کیوز کے حوالے سے ڈیٹیل ہے وہ ہم نے پڑھی، اور جس ٹرانسلیٹر کے بارے میں ہم نے اس سلیبس کے اندر پڑھنا ہے جی ڈبلیو بیسک، اس کا انٹروڈکشن کیا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اس میں پروگرام کی جو سٹیٹمنٹس ہم لکھتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جاتا ہے، سٹیٹمنٹ بائی سٹیٹمنٹ وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ماڈز آف آپریشن، جی ڈبلیو بیسک میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کے جو ماڈز ہیں، کام کرنے کے جو ماڈز ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو جی ڈبلیو بیسک 2 ماڈز میں آپریٹ کرتا ہے۔ جی ڈبلیو بیسک کے 2 ماڈز آف آپریشن ہیں، 2 ماڈز میں وہ کام کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے۔ وہ 2 ماڈ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ڈائریکٹ ماڈ اور سیکنڈ indirect mod. Direct mod and indirect mod. GW basic کے 2 mod ہیں، ایک ڈائریکٹ mod اور ایک indirect mod۔ اب یہ ہے کیا، پہلے ایکسپلین کرتے ہیں ڈائریکٹ mod کو، what is direct mod، اور ڈائریکٹ mod میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ جب جی ڈبلیو بیسک کو لوڈ کیا جاتا ہے، اوپن کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی ایپلیکیشن ونڈو کھل کر آئے گی، اس کا بیک گراؤنڈ بلیک آئے گا اور ایک کونے میں اوپر اوکے لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اٹ مینز ہم ڈائریکٹ ماڈ کے اندر آ چکے ہیں۔ جب جی ڈبلیو بیسک کو جو ٹرانسلیٹر ہے بیسک لینگویج کا، اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس کی جو ایپلیکیشن ونڈو کھل کر آئے گی وہ بلیک بیک گراؤنڈ ہوگا اور ایک اوپر والے کونے میں لکھا ہوا ہمارے سامنے آئے گا اوکے۔ اس کا مطلب ہم کس ماڈ میں آ چکے ہیں، ڈائریکٹ ماڈ میں۔ اور ڈائریکٹ ماڈ میں ہوتا کیا ہے، جتنی بھی کمانڈز ہیں بیسک کی، کمانڈز آر ایگزیکیوٹڈ ان ڈائریکٹ ماڈ۔ اگلا جو ٹاپک ہے جو آج ہی ہم نے کرنا ہے وہ کمانڈز اور سٹیٹمنٹس کا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، کمانڈز کیا ہوتی ہیں، سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، تو اس کا بھی مائنر سا انٹروڈکشن ہمیں یہاں سے مل جائے گا۔ ڈائریکٹ ماڈ کے اندر بیسک کی جو کمانڈز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، اور ان کمانڈز کا کام کیا ہے، یہ کوئک کیلکولیشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کوئک کیلکولیشنز کے لیے۔ کون سی کوئک کیلکولیشنز، جتنی بھی ارتھمیٹک آپریشن ہم پرفارم کرتے ہیں، ارتھمیٹک آپریشن، ایڈیشن وغیرہ، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن وغیرہ، یہ ایسی کیلکولیشنز ہیں، فار ایگزامپل میں نے 2 ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا کہ ان 2 ویلیوز کو ایڈ کرنے کے لیے پورے کا پورا پروگرام بنا دوں، میں نے کوئکلی ان 2 ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے، ان کا ریزلٹ دیکھنا ہے، بس دیٹس انف۔ تو پھر میں سمپل ڈائریکٹ ماڈ کے اندر ان 2 ویلیوز کو ایڈ کرنے کی کمانڈ لگا دوں گا۔ کمانڈ سے کیا فائدہ ہوگا، مجھے آؤٹ پٹ مل جائے گی، اور جب ریزلٹ سامنے آئے گا، ریزلٹ ہمیں سامنے شو ہو جائے گا، کمانڈ ختم ہو جائے گی، ریزلٹ ہمیں سامنے مل گیا۔ تو ڈائریکٹ ماڈ میں جو کمانڈز لگائی جاتی ہیں، کمانڈز لگانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے کوئی کوئک کیلکولیشن کرنی ہے جس کے لیے پورے کا پورا پروگرام ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سمپلی اس کیلکولیشن کا ریزلٹ شو کرانا ہے بس، پھر بار بار ہم نے اس کیلکولیشن کو یوز نہیں کرنا۔ پروگرام ہمیشہ اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک چیز کو بار بار پرفارم کرنا ہے تو آسانی ہو جائے۔ تو اگر ایک کیلکولیشن
सामने आई जो फौरन से होकर उसका रिजल्ट हमें चाहिए, बस रिजल्ट लिखकर फिर मुझे वो फार्मूले वो कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, तो फिर मैं डायरेक्ट मॉड में डायरेक्ट फार्मूला लगाकर अपना काम आसानी से कर सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट मॉड है। डायरेक्ट मॉड के अंदर बेसिक की कमांड्स अप्लाई की जाती हैं। कमांड्स का मकसद क्या है? कोई कंप्यूटेशंस करना, रिजल्ट शो कराने के बाद कमांड स्क्रीन से जाया हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट मॉड है। सेकंड मॉड इनडायरेक्ट मॉड। इनडायरेक्ट मॉड में बेसिक की स्टेटमेंट्स ऐड की जाती हैं। बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो दी जाती हैं। स्टेटमेंट्स क्या कहलाएगी? जो हम प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इन स्टेटमेंट से क्या बनेगा? प्रोग्राम बनता है। स्टेटमेंट्स की मदद से प्रोग्राम बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट मॉड के अंदर स्टेटमेंट्स लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो इनडायरेक्ट मॉड जब हम देखेंगे, इसके नीचे पूरी प्रॉपर प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्लानिंग हमने की हुई होती है, एल्गोरिथम बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर, उसमें जितनी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सारी की सारी जब हम लिखना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे ये हमने प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें स्टेटमेंट्स ऐड की। जब स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, लिखी जाएंगी, तो हम कहेंगे हम इनडायरेक्ट मॉड में है। डायरेक्ट मॉड में स्टेटमेंट्स नहीं होती, कमांड्स होती हैं। इनडायरेक्ट मॉड में प्रोग्राम बनाने की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी लिखी जाती हैं। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है व्हाट इज डिफरेंस between commands and statements. What is difference between commands and statements? ये जो बेसिक की कमांड्स हैं ये क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो हमने ये पढ़ा, ये जो कमांड्स हैं ये डायरेक्ट मॉड में अप्लाई होती हैं। डायरेक्ट मॉड में बेसिक की जो कमांड्स हैं वो डायरेक्ट मॉड में हम अप्लाई करते हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं या इनडायरेक्ट मॉड में इन्हें हम अप्लाई करते हैं। फिर कमांड्स प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं होती। कमांड सिर्फ दी जाती है फॉर क्विक कैलकुलेशंस। कमांड्स आर अप्लाइड फॉर क्विक कैलकुलेशंस, और स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स। स्टेटमेंट्स हम लगाते हैं किस लिए? फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स बनाने के लिए। फिर थर्ड में कमांड्स डू नॉट रिक्वायर लाइन नंबर, और स्टेटमेंट्स रिक्वायर लाइन नंबर। कमांड्स जो हम लगाते हैं इन्हें लगाने के साथ लाइन नंबर की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कमांड लगाई ऑटो, पीछे मैंने कोई लाइन नंबर नहीं दिया, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट लगानी है, फॉर एग्जांपल इधर स्टेटमेंट लगा रहा हूँ तो पीछे लाइन नंबर मुझे कोई ना कोई लाजमी देना पड़ेगा। तो ये इनमें डिफरेंस के 3 पॉइंट्स हैं कि कमांड्स डायरेक्ट मोड में लगती हैं, स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट की जाती हैं। कमांड्स क्विक कैलकुलेशंस के लिए, जैसा मैंने बताया, तो
वैल्यूज को हमने ऐड करना है, वो फौरन से रिजल्ट दिखाने के बाद खत्म हो जाए, उसके लिए सवाल होती है। और स्टेटमेंट मुकम्मल एक प्रोग्राम बनाने के लिए कमांड्स को लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट्स जहाँ पर होंगी उसके पीछे लाइन नंबर लाजमी होगा। तो स्टेटमेंट की ये भी पहचान है कि उसके साथ लाइन नंबर होगा। इस चीज़ के साथ लाइन नंबर लिखा हुआ होगा, हम कहेंगे ये स्टेटमेंट है। और अगर लाइन नंबर नहीं लिखा हुआ, हम सिंपली कह सकते हैं ये कमांड है। अब आगे जो एक पैराग्राफ है, क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। प्रोग्राम बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है। स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, पहले लिखा जाता है लाइन नंबर, उसके बाद स्टेटमेंट। सिंटैक्स से पहले लिखी जाती है लाइन नंबर, उसके बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसी होगी, कौन सी होगी, कोई भी हो सकती है। स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, प्रोग्राम के मुताबिक होगी। जिस नेचर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट हम देंगे। और स्टेटमेंट के साथ शुरू में लाइन नंबर लाजमी है। लाइन नंबर हमने देना है। लाइन नंबर कैसा हो सकता है, कैसे दे सकते हैं। लाइन नंबर 0 से लेकर 65,529 तक दिया जा सकता है। जो लाइन नंबर है ये 0 से लेकर 65,529 तक दिया जा सकता है। मैं बेशक लाइन नंबर ऐसे दे दूं 5, 10, 15, 20, लाइन नंबर इस तरह से दे दूं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लाइन नंबर ऐसे दे दूं 10, 20, 30, 40, जिस तरह से मर्जी है दे दूं। लेकिन मैक्सिमम जो लाइन नंबर की लिमिट है वो 65,529 तक दिया जा सकता है। और एक लाइन में, ये जो एक लाइन हम लिखते हैं स्टेटमेंट की, उसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। एक लाइन में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, सिंबल वगैरह सब कुछ मिला के एक लाइन में। ये जो एक प्रोग्राम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो स्टेटमेंट्स लाइन के अंदर होती हैं। तो एक लाइन पे मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन नंबर आगे स्टेटमेंट, लाइन नंबर की लिमिट 0 से 65,529। एक लाइन पे मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। अगर एक लाइन पे 2 स्टेटमेंट्स हमने लिखनी हो, 2 स्टेटमेंट्स ऑन सिंगल लाइन, तो फिर हमें एक सिंबल यूज करना पड़ेगा। कौन सा, कॉलन का सिंबल। अगर एक लाइन पे हमने 2 स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कॉलन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लाइन है, लाइन नंबर 10, इस पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इसी लाइन के आगे एक और स्टेटमेंट भी लिखनी है, तो मैं कॉलन का सिंबल लगा कर आगे एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो एक लाइन पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। और अगर एक लाइन पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आएंगी तो हर स्टेटमेंट को सेपरेट कैसे किया जाएगा, कॉलन सिंबल से। अब इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा ना बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिंटैक्स के मुताबिक होती है। तो ये रूल है, ये रूल्स अगर हमें आ जाए तो हम प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। आज की जो आखिरी बात है कि लाइन नंबर अगर मैं ऐसे लिख दूं 5, 3, 4, 2, 1, 9, इनके आगे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये लाइन नंबर तो कोई भी दिया जा सकता है। अगर मैं लाइन नंबर इस तरह से लिख दूं तो वो चलेंगे कैसे, किस तरतीब से चलेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर लाइन नंबर की एग्जीक्यूशन होगी, लाइन नंबर जिस तरतीब से मर्जी है लिख दें, लेकिन जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, पहले नंबर पे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9।
اس کا یہ مطلب ہے پروگرام میں لائن نمبر کی فزیکل جو اپیئرنس ہے وہ میٹر نہیں کرتی. لائن نمبر جیسے مرضی ہے لکھ دیں. وہ چلیں گے کس ترتیب سے؟ اسینڈنگ آرڈر میں. اسینڈنگ آرڈر، سب سے چھوٹا لائن نمبر پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اینڈ سو آن آگے چلتے جائیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آپ نے جو کریٹ اینڈ سیو دا پروگرام والا پورا ایک پیراگراف ہے، ریڈنگ کلاس بھی کرنی ہے. جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ نے ہائی لائٹ کر دینی ہے تاکہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ہمیں یاد رہیں. کل انشاءاللہ پروگرام سیو کیسے ہوتا ہے، چلتا کیسے ہے، لوڈ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے.